On. Okay, chalo. So good morning, dear students. Good morning to all the live streaming students. Right? आज तो अटेंडेंस बहुत ही कम है या एग्जैक्ट 9 है इसलिए. अच्छा, ठीक है. So let's get started. कम्युनिकेशन का चैप्टर एक बार जस्ट रिकैप करा देती हूँ एंड देन आई स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक. कम्युनिकेशन के चैप्टर में आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे मैंने आपको पहले आइडिया दे दिया है. सो आई हैव गिवन यू द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल बी आस्क्ड इन द चैप्टर ऑफ कम्युनिकेशन. शुड यू ड्रॉ द डायग्राम्स ओवर देयर? द आंसर इज येस, यू मस्ट ड्रॉ द डायग्राम्स. सो इन केस यू लुक एट योर कम्युनिकेशन चैप्टर, here are some of the questions. Like, state the types of communication channels. Do you know the types of communication channels? Yes. Explain each in a couple of sentences. So, do you know the types of channels? Channels का मतलब होता है माध्यम, medium. So, it is going to be verbal, non-verbal and visual. Do you know the answer to this question? Yes. What are the main steps in the process of communication? मैंने process सिखा दिया आपको. पहले मैं पर्पस सोचूंगी. रिमेंबर मैंने बोला विनोद सर का क्लास चालू है, आप बाहर है, कोई आपका एक फ्रेंड अंदर आ गया, मूवी जाने का प्लान था, है ना? तो फिर आप पर्पस सोचोगे, फिर कंटेंट, फिर मीडियम सोचोगे कि एसएमएस करूं या चिट्ठी भेजूं या ऐसा. तो ये याद है आपको. फिर रिसीवर को मैसेज मिलेगा, फिर डिस्टर्बेंस होगा, फिर वो उसको डेसिफर करेगा, इंटरप्रेट करेगा और फिर आपको फीडबैक देगा. दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. सो डू यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम बेटा? यस. सो इस डायग्राम भी ड्रॉ करना जरूरी है क्या? हाँ, डायग्राम भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है ना? Mention the networks used in communication which is the most effective for teamwork and why. So do you know the 5 networks? Yes. What are the 5 networks? Vertical, circuit, chain of command, then wheel and spoke and star network. And which is the best for team? Star network, because there are multiple channels of communication. मतलब there's no hindrance. There's anybody can talk to anybody and फटाफट काम हो जाएगा. What are the disadvantages of wheel? Wheel मतलब याद है कि एक single person बीच में A to B, B to A to C, C to so it is good for a small company. It's not good for a large organization. It is also entire organization का काम वो एक अकेले A की efficiency पे dependent करता है. So if A is not very efficient, not a very good leader, तो वैसे भी ये network काम नहीं करेगा. याद आ रहा है ना सब कुछ आपको? हाँ. What are the disadvantages? ये हो गया. What according to you are the 5 most important characteristics of effective communication? Give reasons for your answer. So in fact, any 5, whatever you remember, I told you there are the first 6 are starting with C. So communication should be clear. Concise means brief. It must be concrete based on facts and statistics. It must be complete. सारा information होना चाहिए. Coherent मतलब एक logical sequence होना चाहिए. You can't jump from one idea to another idea. Then courteous मतलब you should be very polite and respectful when you are talking. उसके बाद दूसरे characteristic आपके ऊपर dependent है. Focus and attention and emotions and listening for understanding. तो देखो अभी तो आपने पढ़ाई भी नहीं करी है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जस्ट लेक्चर के बेसिस पे यू आर एबल टू रिकॉल दिस. सो इफ यू रिवाइज इट तो आपको लर्न हो जाएगा. सिर्फ क्लासेस के बेसिस में मैंने आपको काफी लर्न करवा दिया है कि नहीं? यू आर एबल टू गिव द आंसर्स. थ्योरी को ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बट आप आंसर दे पा रहे हो, है कि नहीं? Yes. Now, what are the barriers in communication? In an organization, which barrier according to you impedes communication the most? In an organization, which barrier according आपके हिसाब से ऐसे पूछ रहे. But first, what are the barriers? Do you know there are many barriers? तो पहले तो बाहर वाला मतलब surroundings. Then organization के अंदर. So organization के अंदर वाले barrier का क्या नाम था? Organizational structure barrier. मतलब वहाँ पे structure ठीक नहीं है, system ठीक नहीं है, चेन ऑफ कमांड ठीक नहीं है कि नहीं? एंड देन 2 ये हो गए. फिर आपके ऊपर डिपेंडेंट है लाइक लैंग्वेज, कल्चर, इमोशंस एंड एटीट्यूड. आपके एटीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, बरोबर ना रे? उसके बाद क्या था? परसेप्शन अलग है. हाँ, परसेप्शन अलग है. ओके. एंड देन फिजियोलॉजिकल एंड देन टेक्नोलॉजी. मैनेजेबल है ना? हाँ. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके हिसाब से कौन सा? तो मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर. कि ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, चेन ऑफ कमांड ठीक नहीं है, तो इट विल इम्पीड का मतलब कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है. इम्पीड का मतलब इट विल रेस्ट्रिक्ट और इट विल स्लो डाउन द कम्युनिकेशन. फास्ट नहीं होगा, स्लो होगा. ओके.
Based on communication channels, what are the different kinds of communication methods? So based on communication channel, फिर से वही पूछ रहे हैं। एथ का आंसर देखना क्या दिया है नीचे। एथ का आंसर देखो क्या दिया है, वही बोला है, फिर से वही है, मतलब कुछ अलग नहीं है ना। ओके, पुट माय मोबाइल फॉर चार्जिंग। ऑल राइट, आगे। व्हाट इज द चेन ऑफ कमांड इन कम्युनिकेशन, व्हाट इज ड्रॉबैक? चेन ऑफ कमांड पहले एक्सप्लेन करो कि ऊपर से स्टार्ट होगा एंड चेन ऑफ कमांड फॉलो की, पूरी हायरार्की फॉलो की जाएगी एंड इसमें से इट टेक्स टाइम एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन में नॉट बी क्लियर, ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, टेक्स टाइम ना। ए आपको फिर डायग्राम ड्रॉ करना है, ए किसको कम्युनिकेट कर रहा है, बी को, बी सी को और सी डी को, और यहाँ ए ई को कर रहा है, ई एफ को कर रहा है और एफ जी को कर रहा है। तो आप डायग्राम ड्रॉ करो, 2 लाइन्स में उसको एक्सप्लेन करो और उसके 2 डिसएडवांटेजेस लिख दो, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। What is oral communication? What are its essential elements? तो याद आ रहे क्या? What are the essential elements? Pronunciation, grammar सही होना चाहिए, आपका presentation सही होना चाहिए, आपने vocabulary, आपके presentation tips है, तो ये सब जो characteristics है oral के, ये भी हमने learn कर दिए। So is there anything that you are feeling कि नहीं याद आ रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है या समझा नहीं है, तो आपको कोई डाउट या डिफिकल्टी है क्या बेटा? Anybody having any doubt or difficulty? Live streaming students, I hope you all are also understanding. किसी को कोई issue या difficulty नहीं है बेटा? Okay. Question number 6 नहीं समझा। Impedes मतलब कौन सा बैरियर कम्युनिकेशन को स्लो करता है? रौनक, आई थिंक तेरा मैसेज पहले आया, मैंने डिस्कस कर दिया। तो इम्पीड करना मतलब विच स्लोज डाउन एंड प्लीज अंडरस्टैंड, इम्पीड का शब्द मीनिंग नहीं पता है, एग्जाम में भी होने वाला है। रौनक, ऐसे नहीं बिहेव करने का है, आपको फ्लो में समझना है। बैरियर्स की बात हो रही है तो ये पूछ रहे कि कौन से बैरियर से दिक्कत आ रही है आपके हिसाब से। सो ऑब्वियसली कुछ अच्छी बात नहीं पूछी जा रही है, आपको क्या पूछे जा रहा है, बैरियर्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वी आस्किंग कि कौन से बैरियर से देयर इज अ प्रॉब्लम, जिससे कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा। एग्जाम में याद रखना, आप ये जब जितना मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे ना, एग्जाम में डोंट से कि आई गॉट अ सरप्राइज, ऐसा होने ही वाला है कि कुछ शब्दों की मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगी। इट्स इंग्लिश पेपर, प्लीज अंडरस्टैंड। तो वोकैबुलरी मतलब कुछ भी वो लोग डाल सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, या प्रिपेयर होके जाओ कि आई एम नॉट गोना नो द मीनिंग्स, बट मुझे फ्लो के हिसाब से तो समझ में आना चाहिए कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, समझ में आता है ना। तो बैरियर की बात हो रही है तो ऑब्वियसली दे आस्किंग कि कौन सा आपके हिसाब से, पहले तो बैरियर्स बोलो, ये तो इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, फिर आप बोलो कि कौन सा बैरियर है विच इज इम्पीडिंग द कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन स्लो कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, समझ में आ गया क्या? यस, कोई डाउट है क्या किसी को और? थैंक यू। हे चार्जिंग का लाव रे, इथे खाली आहे का? हां, ऑल राइट। सो हियर आई वाज जस्ट वेटिंग, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, ऑल ओके, ठीक है ना? या रिझन्स फॉर युअर आन्सर। नेहा म्हणजे तू क्या लिखेगी? ओ माय गॉड नेहा, अपन सीए कोर्स कर रहे हैं, शी इज टेलिंग कि मैम रीजन्स ना कैरेक्टरिस्टिक, तो कंप्लीट, तो आप क्या बोलोगे? Complete communication is important. You should give all information. If all information is provided, then the receiver can take quick decision. आपने सिर्फ मैसेज डाला, लेट्स गो फॉर are you in for a movie plan? अरे वो कितने सवाल कैसे आंसर दे पाएगा? He will first ask which day, which movie, what time and all that stuff. So communication should be complete. मतलब reasons मतलब उसका explanation देना है। नेहा, come on, अपन CA कोर्स कर रहे हैं, अभी तुम ऐसे सवाल पूछोगे तो कैसे चलेगा? नेहा, give me a thumbs up. You have to understand that रीजन्स मतलब क्या देना है, उसके बारे में 2 लाइन्स देना है कि वाई कम्युनिकेशन इज, वाई कंप्लीट, वाई इट शुड नॉट बी कोहेरेंट में आप क्या बोलोगे कि इफ यू जंप फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, द फ्लो इज डिस्टर्ब, द कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी इन अ प्रॉपर फ्लो एंड देयर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकल सीक्वेंस, है कि नहीं? ऐसे नहीं करने का, अपन 3 साल में सीए बनने वाले हैं, थोड़ा सा सोचने का कि क्या पूछा गया है। 2 मिनट एग्जाम में भी टेक अ पॉज, थिंक व्हाट इज आस्क्ड, एकदम जल्दी से ऐसे हाइपर नहीं होने का, बहुत जरूरी होता है। आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है सी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। समझ में आता है क्या? यस। हाँ रौनक,
6 के लिए सेकंड पार्ट का आंसर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर होगा, 6 के सेकंड पार्ट का। लेकिन पहले व्हाट आर द बैरियर्स, तो वहां पे तुम्हें कुछ बैरियर्स के बारे में बात करना पड़ेगा। देखो और कौन से क्वेश्चन में डाउट है तो मैं सॉल्व करती हूँ, नहीं तो आई विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। तुम लोगों ने चार्ट्स बनाए क्या? अभी तो मैंने टाइम दिया था, वैसे किसी का हो गया रहेगा तो आप क्लास के बाद मुझे दिखाना, नहीं तो फिर मैंने आपको क्या 2 दिन बोला ही है कि आप टाइम लेके सॉल्व कर सकते हो। यस, डन, नो डाउट्स हियर। तुम लोगों के बेटा किसी के कोई डाउट्स है क्या? नहीं, पक्का? आई गो हेड, ओके। अब जो अगला टॉपिक है ये कंपलसरी 5 मार्क्स आपको देने वाला है। इट्स गोइंग टू बी द क्वेश्चन नंबर 7A और 7B। आपको बता दूं पहले 6 क्वेश्चंस आपके लॉ पेपर के होते हैं, क्वेश्चन 7 से स्टार्ट होता है आपका BCR। तो अब क्या होता है, जो क्वेश्चन नंबर 7A होता है वो कॉम्प्रिहेंशन पे आता है, वो मैं चैप्टर अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, वो 5 मार्क्स के लिए आता है। 7B जो होता है एक पैसेज दिया जाता है और उसके नोट मेकिंग करना होता है। उसका क्या करना होता है? नोट मेकिंग करना होता है। सो एक पैसेज दिया जाएगा, उसका नोट मेकिंग करना और उसकी समरी राइटिंग करनी है। नोट मेकिंग के लिए 3 मार्क्स होते हैं, समरी राइटिंग के लिए 2 मार्क्स होते हैं। ऐसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन 7A 5 मार्क्स का आएगा, क्वेश्चन 7B 5 मार्क्स का आएगा। बताना मुझे क्या है, क्वेश्चन 6 तक क्या होगा आपका? लॉ। 7A क्या होगा? 5 मार्क्स कॉम्प्रिहेंशन। 7B क्या होगा? 5 मार्क्स नोट मेकिंग। 7A कंपल्सरी, 7B कंपल्सरी। रिमेनिंग 4 क्वेश्चन में से यू हैव टू चूज 3 क्वेश्चन। सो 10 मार्क्स ये तो पक्के हैं आपके, मतलब कॉम्प्रिहेंशन वेरी इजी, वो मैं आपको सिखाऊंगी भी, और नोट मेकिंग ऑल्सो बहुत इजी और मैनेजेबल है, तो वो 10 मार्क और कम्युनिकेशन के 6 मार्क। तो ऐसे तो 16 मार्क्स हमारे इधर ही बन जाते हैं। तो अगर 16 डिवाइडेड बाय 40 करो, ये बहुत ही इजी है और इजीली आपको मिलना इसमें पॉसिबल है। फ्यू मार्क्स हियर एंड देयर ऑफ कोर्स यू विल लूज, बट 16 आउट ऑफ 40 इज क्वाइट अ गुड नंबर। तो अब यहाँ पे नोट मेकिंग में होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। नोट मेकिंग में बेटा ये होता है कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा। ठीक, क्या होता है ना नोट मेकिंग, जैसे पूरे कम्युनिकेशन का मैंने आपको बोला 2 पेजेस में नोट्स बनाओ, हम क्या कर रहे हैं? नोट मेकिंग कर रहे हैं। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग नोट मेकिंग। तो क्या होता है, बहुत बड़ा और लंबा टेक्स्ट पढ़ने के लिए कभी कभी सिर्फ आप 10 मिनट आपके पास टाइम है। अब देखना कम्युनिकेशन चैप्टर इतने अच्छे से याद हो गया है, अगर आप आगे महीना भर इसको देखोगे नहीं तो आप भूल ही जाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि चार्ट है, एवरी 10 डेज आई विल गो थ्रू दिस चार्ट वन, सी BCR को अलग से फिर टाइम देने की जरूरत ही नहीं है। आपने एवरी 10 डेज में 2 आवर्स आपने BCR को दे दिए तो योर BCR इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ। BCR के सारे चैप्टर्स के नाम, सबसे पहले यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स for accounts, list of chapters for law, for BCR, for eco and for maths, and it should be put up at your study table somewhere so that सामने आंखों के सामने प्लान ही नहीं है तो क्या ही तुम पढ़ने वाले हो। तो तुमको पता होना चाहिए कि अकाउंट्स में 15 टॉपिक्स है, अज्यूम, आई एम जस्ट सेइंग दैट। तो यू शुड नो कि 15 में से आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो उसके आगे आपने 3 कॉलम्स बनाने चाहिए, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 एंड रिमार्क्स। रिमार्क्स मतलब इस चैप्टर कुछ आपको लिखना होगा कि अरे इस चैप्टर में ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है या मुझे फिर से रिवाइज करना है। फर्स्ट थिंग टुडे यू आर गोना गो इज मेक अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स दैट यू आर हैविंग फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स एंड मेक इट इन अ कंसाइज मैनर। ऐसे बहुत लंबा नहीं, कुछ भी जो हम शॉर्ट में लिखे ना, एक ही विजन में अपने एक ही पेज में। तो हैंडराइटिंग थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करो कि अकाउंट्स का एक हो गया, एक लॉ का, तो ऐसा सब सामने आपके स्टडी टेबल पे आपने लगा दिया है। वॉल है, स्टडी टेबल नहीं है, वॉल पे आपने चिपका दिया तो एब्सोल्युटली चलेगा। लाइफ इज जस्ट अबाउट दिस राइट नाउ। अपना गोल है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट। आफ्टर दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये जो पढ़ाई है अगर ये आपको ज़्यादा लग रही है तो बॉस नेक्स्ट टाइम इससे और ज़्यादा पढ़ना है। तो जस्ट इमेजिन अगर यही आपको ज़्यादा लग रहा है तो ठीक है ना। तो मैं डरा नहीं रही हूँ, आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट हैव अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स सो दैट यू आर एबल टू प्लान कि चलो अकाउंट में 13 है तो मेरे कितने हो गए, सर के कितने पढ़ा के हो गए वो बात नहीं है, आपके कितने लर्न करके हो गए, आपके कितने रिवाइज करके हो गए। आपने देखा क्या अकाउंट्स के इस चैप्टर में कितने प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, what type of questions that you are going to get, are you able to solve them, take 2 paper questions and sit and solve them, you get stuck somewhere while the classes are going on, आप पूछ सकते हो सर को। अकाउंट्स है, लॉ है, इको है, मैथ्स है, हर चैप्टर आपके पास फिक्स होने चाहिए। सो टुमारो यू आर गोइंग टू टेल मी द नंबर ऑफ चैप्टर्स यू हैव इन ऑल सब्जेक्ट्स।
total chapters, total divided by number of days you have. So you know in every day you are supposed to do how many chapters. एक अंदाजा आ जाता है आपको. चैप्टर्स वहाँ पे लिखे हुए होने चाहिए. रिविजन 1, रिविजन 2, जो जो चैप्टर्स हो गए उसको एक टिक मार्क आना चालू होएगा, तो आपको पता चलेगा क्या बचा है. नहीं तो क्या ही प्लान बनाओगे तुम. What is this now? Okay, that's okay. So did you understand? पहले आज आपका क्या टारगेट क्या है, पहले टास्क क्या है? हाँ, सारे चैप्टर्स के आपका क्या करने का है? हाँ, लिस्ट तैयार रखनी है एंड आपका एक प्लान रेडी होना चाहिए. ठीक है. हाँ, किसी ने बनाया स्टडी प्लान? बनाया कि ऐसे ही चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है? अरे रे 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 रे, ऐसे ही चल रहा है? प्लान है. तुमको पता है जब प्लान नहीं होता है तो तुम्हारा दिन तुमको सी ऑलवेज एज अंडरस्टैंड योर डे, योर सर्कमस्टेंसेज, योर सराउंडिंग्स आर कंट्रोलिंग यू, विच इज नॉट करेक्ट. यू शुड बी कंट्रोलिंग योर डे. यू शुड नो कि आज मुझे क्या करना है. आप क्या करते हो? अभी क्लास हो गया, कुछ प्लान ही नहीं है, घर चले गए, किसी दोस्त का फोन आ गया तो उसके साथ बात कर ली, किसी ने बुला लिया तो वो कर लिया, फिर आपको मन लगा तो चलो पढ़ने बैठते हैं. तो तुम पहले आधा घंटा तो डिसाइड करोगे पढ़ना क्या है, फिर वो डिसाइड करते करते तुमको भूख लग जाएगी, फिर तुमको याद आएगा अरे थोड़ा सा पढ़ना है. सिलेबस अपना इतना, सीए का फील्ड ऐसा होता है कि पढ़ाई ऐसी होती है कि 10-15 मिनट तो तुमको क्या पढ़ना है, क्या चैप्टर में, वो समझने में लगता है. तो तुमको लगता है बस आधा और 1 घंटा पढ़ लिया तो हो गया. ऐसी मेहरबानी मत करना. आधा और 1 घंटा ऐसे फेवर करने जैसे पढ़ना मत. इतना ही टाइम पढ़ना है तो पढ़ो ही मत. पढ़ना है तो सेल्फ स्टडी एवरीडे 3 to 4 आवर्स होना चाहिए, क्लासेस को छोड़ के. क्लासेस को छोड़ के अगर आपको लगता है क्लासेस अटेंड करने से सब पास हो रहा है तो 100% रिजल्ट आ जाता. सारे बच्चे 100% क्लास अटेंड करते. क्लासेस अटेंड करने से अगर रिजल्ट अच्छा आता तो सभी सीए बन जाते. आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको प्लान बनाना पड़ेगा, आपको आपका दिन कंट्रोल करना पड़ेगा. जैसे चल रहा है वैसे चलेगा तो नहीं चलेगा. डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है क्या? तो आप प्लान बनाओगे क्या? आज प्लान बना के आपके पास टारगेट होना चाहिए कि व्हाट एम आई सपोज टू डू. आज दिन में मुझे 3 घंटे, कितने चैप्टर्स है? ये 4 चैप्टर्स रिवाइज करके होने चाहिए. बीसीआर का कम्युनिकेशन का चैप्टर 10 दिन के बाद आपने फिर से रिवाइज करना चाहिए, अगला चैप्टर उसके बाद रिवाइज करना चाहिए. ऐसा आपके पास प्लान रेडी होना चाहिए. ठीक है, चलो आगे जाएंगे. अब नोट मेकिंग. सबसे पहले आप ओपन करोगे आपका 1 डे बिफोर द एग्जाम वाला सेक्शन. आपके नोटबुक को 3 सेक्शन में डिवाइड किया. एक जनरल, एक क्या बोला है, इडियम्स, और एक है 1 डे बिफोर द एग्जाम. सो ओपन 1 डे बिफोर द एग्जाम वाला सेक्शन. अरे आज बहुत इधर उधर की बातें हो गई. मैंने आज तुमको बहुत ज्ञान दे दिया. हाँ, अर्ली मॉर्निंग. ठीक है, चलो. मेरा एक YouTube पे लेक्चर है ऑन हाउ टू मेक अ स्टडी प्लान. 11-12 मिनट्स का होगा. इंटर के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है बट इट्स जनरली फॉर सीए कोर्स. बट यू कैन सी इट वंस. इट्स ऑन माई यूट्यूब चैनल बट यू कैन वॉच इट वंस. 12 या 13 ज़्यादा नहीं होगा, 12-13 मिनट का ही होगा कि स्टडी प्लान कैसे बनाते हैं. ठीक है. अभी अपन किधर है? हाँ, तुमने ओपन किया क्या 1 डे बिफोर? या सो हियर राइट डाउन 1 डे बिफोर द एग्जाम में आपको ये लिखना है, रूल्स फॉर नोट मेकिंग. आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? चला लवकर करा. रूल्स फॉर नोट मेकिंग. मैं पढ़ के बताती हूँ आपको. ये रूल्स फॉर नोट मेकिंग आप कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्वेश्चन 7B में. और ये कितने मार्क्स के लिए आएगा? 3 मार्क्स के लिए. पहले मैं पढ़ के आपको दिखाती हूँ, फिर अगर आपको गाना सुनते सुनते लिख के लेना है तो आप लिख के ले सकते हो. गाना अगर रेडी होगा तो कोई फटाफट रेडी करो. आई डोंट नो वेयर द ऑक्स केबल इज. आई विल कॉल सूरज एंड आस्क हिम. बट ठीक है, आपका गाना भी आप डिसाइड कर दो. पहले मैं पढ़ के बताती हूँ. रीड द पैसेज वंस. पहले क्या लिखा है? रीड द पैसेज वंस. रीड इट अगेन एंड अंडरलाइन द मेन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स एंड मेन पॉइंट्स. फॉर एवरी सब हेडिंग मार्क एटलीस्ट 3 to 4 सब पॉइंट्स. Heading, no abbreviation. Subheading and subpoints should have abbreviations. Follow the rules of indentation or margin. Also provide key for abbreviation. से ये पहले 7 पॉइंट्स लिख के लो. उसके नीचे फॉर्मेट है वो भी आपको लिख के लेना है. चलो, तो कौन गाना आप गाना सुनते सुनते लिखने वाले हो क्या?
Start writing. Where are you writing this? हाँ हाँ, नहीं हुआ तो क्या करेंगे? स्टार्ट तो इधर से ही करना है. ये चार्ट नहीं है बेटा, तो कैसे कि मेरे को 2 अक्रॉस पेजेस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट स्टार्ट राइटिंग. ऑक्स केबल देना मला. कुठले किती वायर्स है तिथे? हाँ मिल गया. कौन गाना लगाने वाला है? यस, तो केबल इज हियर. अगर आपको गाना सुनते सुनते लिखना है तो दैट ऑप्शन इज देयर. एनीबडी वांट्स टू कम एंड प्ले अ सॉन्ग, यू कैन पुट योर सॉन्ग हियर. आना, किसको आना? क्या आना तू? अरे आना, लगा के जाना. फिर क्या ऐसा कर रही है? चलो लिख के हो गया क्या? ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, और लिखा होगा तो उसको काट डालना. मच मत करो मेरे क्लास में. क्या? वो इरेज कर दिया मैंने. जो नहीं लिखना है वो मैंने इरेज कर दिया. क्या हो गया तेरे? इसको वॉल्यूम कवर काढा लागेल का? कवर निकालना पड़ेगा. रुक, शायद ऐसा लग रहा है. आवाज नहीं आ रही है ना? आवाज ही नहीं है. बघ इतना वॉल्यूम वाढवायचं. हो गया 1 to 7. सारी सारी रात जगावे यादां नू जिक्र करावे आए क्यों ना आए सुभावे हानियां तेरी. क्वेश्चन नंबर लिखना कौन से इधर आएगा. क्वेश्चन नंबर 7, 3 मार्क्स. फॉर्मेट भी लिखना है. मैं स्क्रॉल करती हूँ. हो गया क्या लिख के? छेती सोने रात ना लंगे आ जा सोने रात ना लंगे. छेती सोने रात ना लंगे आ जा. ये फॉर्मेट लिखना है तो नीचे वाला. क्या हो गया? अवघड आहे. लवकर करा ना. ओके ना इतना? क्या और स्क्रॉल करूं? अभी भी बचा है. राइट फास्ट. आपका हाँ बोल. फॉलो द रूल्स ऑफ इंडेंटेशन और मार्जिन. वो क्या है मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, तुम लिख के लो से. हाँ दैट्स ओके.
किसी का स्पीड बहुत स्लो है अभी, और टाइम नहीं दूंगी। फॉर्मेट का फोटो ले लो, देन कंप्लीट इट। अब मैं फॉर्मेट दिखा रही हूँ। मैं ज़मीं तू आसमां, मैं दाग हूँ तू चांद सा, हो गया? बारिश है मेरे तू फॉर्मेट का पिक्चर ले लो, ऐसे आएगा देखो फॉर्मेट। दो ऑप्शंस है फॉर्मेट के, नंबरिंग के अलग अलग ये है, दो है, चांद सा ये या ये टाइप। और मैं धुन कोई तू राग सन्नू अपना बना ले मेरी हीरिए, मैनू अपना बना ले मेरी हीरिए, मेरे दोनों आप लिखो। बनके बूहे बारियां है, हाँ जस्ट नंबरिंग का चेंज किया। बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, तू आ जावी हवा बनके, बूहे बारियां हो गया? बूहे बारियां, बूहे बारियां है, बूहे बारियां। अब मुझे एक्सप्लेन करना है आपको, यहाँ तक लिखना है, जो की भी लिखना है ऑफकोर्स लिखना है, जो जो लिखा हुआ है यहाँ सब कुछ लिखना है आपको। छू तुझे जैसे कोई चांद को छूना चाहे, चाहूं तुझे जैसे कोई बच्चा खिलौना चाहे, छू तुझे जैसे कोई चांद को छूना चाहे, चाहूं तुझे जैसे कोई बच्चा खिलौना चाहे, फिक्र की रात में तू सुकून की नींद, हो गया? पतझड़ Everybody finished? तू बारिश की पहली बूंद, निर्माण फिर अब एक्सप्लेन कर दिया, I'll stop this song. वास्ते निर्माण। Oh, so the chord was not put in properly, I think. Okay, now listen. Ready, everybody paying attention? ध्यान से सुन के लेना। देखो आपको पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपको एक पैसेज दिया जाएगा क्वेश्चन में। क्या दिया जाएगा? पैसेज। अब सुनना, एब्रीविएशंस ये सब क्या है अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। आपको पैसेज दिया जाता है, कभी भी किसी बड़ी चीज को शॉर्ट में पढ़ना हो तो हम उसके क्या बनाते हैं? नोट्स। तो इसलिए हम क्या सीख रहे हैं? इट इज नोट मेकिंग। सो नोट मेकिंग मतलब आप कुछ फॉर्मेट, कुछ चार्ट्स बना रहे हो, शॉर्ट में लिख रहे हो, जिससे फटाफट आपको क्या पूरा चैप्टर, जैसे कम्युनिकेशन के चैप्टर का अगर आप टेक्स्ट देखोगे लगभग 20, 25, 30 पेजेस का होगा, लेकिन आप पूरा चैप्टर 2 पेजेस में बना पा रहे हो कि नहीं? यस। तो वी आर सिंप्लीफाइंग इट, वी आर शॉर्टनिंग इट so that it's easier for us to remember and revise. That is note making. That is note making. Now note making में अलग अलग प्रकार होते हैं. So there are 2 types of note making. There is linear note making and there is non-linear. कौन से note making है बेटा? Linear and non-linear. ये जो हमने लिखा है इसको अपन बोलते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज, या जहाँ पे भी आपको स्पेस होगा लिखना, दिस इज लीनियर नोट मेकिंग। मैंने जो आपको रूल्स दिए वो किसके हैं? लीनियर नोट मेकिंग, है ना? तो टॉप मार्जिन में आप रेड मार्जिन है वहां पे लिखो दिस इज व्हाट। ये क्या चीज है? ये लीनियर नोट मेकिंग है। लीनियर, ये कौन सा नोट मेकिंग का प्रकार है? लीनियर नोट मेकिंग। दिस इज अ टाइप ऑफ लीनियर नोट मेकिंग। समझ में आ रहा है क्या सबको? पक्का? ओके, अब सुनना, जो नोट मेकिंग होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड लीनियर? लीनियर इज अ लाइन, लीनियर स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में है। तो जो अगर आप ये देखोगे जो लीनियर नोट मेकिंग है, क्या है? लीनियर नोट मेकिंग है। ये जो लीनियर नोट मेकिंग है, डू यू लुक एट दिस फॉर्मेट? देखो मैंने आपको, आई कैन से कि कम्युनिकेशन का मीडियम, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का आप लीनियर नोट मेकिंग करो। क्या करो? मैं बोल सकती हूँ लीनियर, मतलब वन बिलो दी अदर। सो आई कैन ऑल्सो मेक दिस चार्ट लाइक दिस। आई कैन गिव अ हेडिंग, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन।
तो मैंने क्या बोला, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके नीचे मैं बोलूंगी देयर आर 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? 3। तो मैं यहां पे लिखूंगी वर्बल। अब वर्बल के नीचे आई कैन से 1। वर्बल के नीचे क्या है? ओरल। और दूसरा क्या है? रिटन। अब दूसरा मैं बोल सकती हूं क्या है? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के नीचे काफी सारे, 1 2 3 4 5, एस्थेटिक, पैरा लैंग्वेज, फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल अपीयरेंस, सिंबल्स। तो ये अलग अलग यहाँ पे टाइप्स है। एंड देन थर्ड पॉइंट इज विजुअल, एंड द थर्ड पॉइंट इज विजुअल। तो मैंने क्या किया, मैंने आपने जो नोट मेकिंग हमने किया ये फ्लो चार्ट टाइप का था। ये क्या था? ये नॉन लीनियर है। इट्स नॉट स्ट्रेट वन बिलो द अदर, दैट इज नॉन लीनियर। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ तो मैं लीनियर भी कर सकती हूँ। लीनियर मतलब वन बिलो द अदर। ऑलवेज आई मस्ट हैव अ टाइटल, एक हेडिंग होगा, है ना। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए फ्लो चार्ट में इस फॉर्मेट में इजी जाता है। दिस इज नोट मेकिंग। यू मस्ट अप्लाई नोट मेकिंग एक्चुअली for studying and actually for making notes for your chapters which are long and lengthy। तो कोई भी चैप्टर बहुत लॉन्ग और लेंदी है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप फटाफट उसके क्या करना चाहिए? नोट बना देने चाहिए। अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स हमेशा बहुत ही बढ़िया रहते हैं, हमें याद भी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आपको जो एग्जाम में अभी पहले तो इसमें 2 टाइप्स हो गए। मैंने क्या बोला? नोट मेकिंग में कितना है? लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो लीनियर जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में कौन सा पूछा जाता है? लीनियर। तो आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसके नोट्स बनाने। इतना सिंपल से काम है, एक पैसेज दिया है उसके नोट्स बनाने। पैसेज अब बहुत ध्यान से सुना, पहले मैं आपको लीनियर एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आपको कौन सा एक्सप्लेन करूंगी? नॉन लीनियर। पहले कौन सा एक्सप्लेन कर रही हूँ? लीनियर। बेटा लीनियर में देखो पहले क्या है, पहले तो पैसेज अच्छे से पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, पैसेज पढ़ने के बाद अंडरलाइन द मेन हेडिंग। तो मैम, एम आई अलाउड इन द एग्जाम टू अंडरलाइन और यूज अ पेन ऑन माई क्वेश्चन पेपर? द आंसर इज नो, यू आर नॉट अलाउड। क्वेश्चन पेपर पे आपका रोल नंबर छोड़ के आपको और कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है, बट यू कैन यूज अ पेंसिल वेरी लाइट एंड यू कैन जस्ट मार्क इट देयर। बिकॉज क्या होता है, कुछ भी हम मार्किंग नहीं करेंगे, ऐसा पूरा बड़ा पैसेज देन बिकम्स डिफिकल्ट ऑल्सो। समटाइम्स द सुपरवाइजर देयर अलाउज डजंट से एनीथिंग एट ऑल, बट इफ दे कम एंड दे से नो दिस इज नॉट अलाउड, यू जस्ट से सॉरी एंड यू कैन जस्ट इरेज इट क्विकली। क्योंकि पेन से तो बिल्कुल यूज नहीं करना, आपको जो भी हल्का सा आपको मार्किंग करना है आप पैसेज को पेंसिल से कर सकते हो। So that is again, if your supervisor says no, you're not allowed to, then you can quickly say okay, I'll not, I will erase it. So that's the only thing. But क्या होता है, बहुत बड़ा पैसेज आ गया और आपने कुछ भी मार्किंग नहीं किया तो नोट मेकिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हल्का सा आपने मार्किंग किया तो चल जाता है। So read the passage once, और एक बार पढ़ो। कभी भी कोई भी चीज़ एक रीडिंग में पूरी समझ में नहीं आती है तो बिंदास 2 बार पढ़ो। तो मैम टाइम क्या है? अरे बहुत टाइम है। वैसे भी अगर तुम आधा पढ़ोगे और क्वेश्चन ढंग से सॉल्व नहीं करोगे तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे पूरे, है ना। तो टाइम बचाने के चक्कर में शॉर्टकट्स मत करना, उल्टा ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। इंस्टेड रीड इट वंस, रीड इट अगेन। ये देखो कि पैसेज किस टॉपिक पे है। जैसे कि अगर मैंने पैसेज दिया कम्युनिकेशन के टाइप्स, वर्बल, विजुअल, ऐसा पूरा एक लिख के दे दिया, तो फिर आप क्या करोगे? व्हाट इज द मेन हेडिंग? आइडेंटिफाई द मेन हेडिंग। हेडिंग को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसके सब हेडिंग्स करने चाहिए। हर पैसेज में आपको मिनिमम 3 सब हेडिंग्स देना जरूरी है। कितनी सब हेडिंग्स देना जरूरी है? 3 मिनिमम। पैसेज बहुत बड़ा है तो ये सब हेडिंग्स 4 भी हो सकती है। तो पहले हेडिंग आते हैं और फिर उस हेडिंग के नीचे आते हैं 3 एटलीस्ट कितने? 3 सब हेडिंग्स होनी चाहिए। जैसे मेरे 3 सब हेडिंग्स क्या थे? वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल, ये मेरे सब हेडिंग्स थे। उसके नीचे मैंने पॉइंट्स लिखे। इनफैक्ट हियर आई शुड राइट वर्बल के बारे में मैंने पॉइंट लिखना चाहिए कि वर्बल मीन्स यूज ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस। देन देयर आर 2 टाइप्स, ओरल एंड रिटन। तो ऐसे मैंने लिखना चाहिए, ठीक है। तो पहला है कि पढ़ो अच्छे से, मैं इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ा रही हूँ आपको। फॉर एवरी सब हेडिंग, हर सब हेडिंग के लिए फिर से नीचे 3 से 4 पॉइंट्स होने चाहिए। तो जैसे मेरी एक सब हेडिंग क्या है? वर्बल। तो वर्बल के नीचे मैंने कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए? 3 to 4 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए मैंने? 3 से 4 पॉइंट्स। तो पहले हेडिंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर सब हेडिंग्स क्या है? वर्बल के नीचे मैंने कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए? 3 से 4 पॉइंट्स लिखने चाहिए। अगला रूल क्या है बोलो मुझे? हाँ, अब ये हेडिंग जो होता है फॉर एवरी सब हेडिंग में 3 to 4। फॉर हेडिंग देयर शुड बी नो एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करने का। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म्स। लिखो, एब्रीविएशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन? शॉर्ट फॉर्म।
लिखो। एब्रीविएशन का मतलब है शॉर्ट फॉर्म। एब्रीविएशन का मतलब क्या है? शॉर्ट फॉर्म, बराबर। तो हेडिंग में मुझे शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना है। आई कांट से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसा ये शॉर्ट फॉर्म यूज करना अलाउड नहीं है। लेकिन आई हैव टू यूज शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीविएशन इन सब हेडिंग्स एंड दिस पॉइंट्स। इस पॉइंट्स में एब्रीविएशन यूज करना कंपलसरी है, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने नोट मेकिंग आईसीआई के रूल्स के हिसाब से पढ़ा है। एग्जामिनर को तभी पता चलेगा। तो पहला, हेडिंग्स में शॉर्ट फॉर्म नहीं होना चाहिए, सब हेडिंग्स और नीचे के पॉइंटर्स में शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए, एब्रीविएशन होना चाहिए। तो अब देखो यहां क्या बोला है, सब हेडिंग्स एंड सब पॉइंट शुड हैव एब्रीविएशन। नेक्स्ट इज फॉलो द रूल्स ऑफ इंडेंटेशन और मार्जिन। ऑब्जर्व हियर, ऑब्जर्व, मैंने 1, 2 एंड 3 कहां लिखा है, एंड अंदर के रोमन नंबर 1, 2, 3 कैसे लिखा है, और अंदर के 1, 2 एंड 3 कैसे लिखे। डू यू ऑब्जर्व दैट माई 1, 2 and 3 are exactly one below the other, and अगले पॉइंटर्स उसके अंदर है 1, 2 and 3। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब मार्जिन्स। आप वर्ड में अगर टाइपिंग करते हो, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ वर्ड डू यू ऑल यूज, अगर आप वर्ड में कुछ टाइपिंग करते हो तो वहां पे इंडेंटेशन फॉलो करना जरूरी होता है। क्या फॉलो करना जरूरी होता है? इंडेंटेशन। तो वर्ड में व्हेन यू आर टाइपिंग समथिंग और आप पॉइंटर्स लिखते हो ना, पॉइंट बुलेट 1, बुलेट 2, तो इट फॉलोज इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली। सो वो पहला जो हेडिंग है 1 आपने दिया और उसके नीचे के पॉइंट्स है ABC, तो वो ABC 1 के नीचे नहीं लिखेगा, उसके स्लाइटली बाहर लिखेगा। तो ये मार्जिन्स होते हैं। तो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे, ये भी देखना 1, आई डोंट नो आपने कैसा लिखा है अभी लिखते वक्त। तो देखो, डिड यू सी 1 के नीचे 2 एंड 2 के नीचे 3 और 3 के नीचे 4, एंड यू सी 1 का सब पॉइंट 1.1, ये सब एक मार्जिन में है। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। अगर आपने वैसा नहीं लिखा है कॉपी करते वक्त, तो प्लीज नोट इट डाउन दैट वे, बिकॉज देयर आर मार्क्स फॉर इंडेंटेशन, देयर आर मार्क्स फॉर दिस मार्जिन एंड देयर आर मार्क्स फॉर दिस इंडेंटेशन। मार्क्स है इसके लिए। तो बिल्कुल आपको ऐसे करना है। अगर आपका गलत हो गया है तो आप उसको डिलीट करके फॉर्मेट को फिर से बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत लिखने से अच्छा है कि सही होना चाहिए। तो भले आपने उसको काट दिया फॉर्मेट को और फिर से फॉर्मेट बना दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 2 ऑप्शंस क्यों दिए? ये रोमन नंबर होते हैं, ये ऐसा 1, 2 और 3, इसको क्या बोलते हैं? रोमन नंबर्स। तो क्या जरूरी है मैं रोमन नंबर्स ही करूं? नहीं, इसलिए मैंने आपको और दिया है। Either you use this Roman number 1, 2 and 3, उसके नीचे ABC, या आपको लगता है नहीं मुझे 1, 2, 3 करना है और 1.1, 1.2, 1.3 बोलना है तो भी चलेगा। आपको जो नंबरिंग का फॉर्मेट अच्छा लगता है वो फॉलो करो। ये पूरा होने के बाद नीचे जब आपके ये खत्म हो जाएगा नोट्स, उसके नीचे आती है की मतलब आपको याद है आप मैप बनाते थे स्कूल में, तो आपने वो रेनफॉल, स्कैंटी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, आप ऐसे डायग्राम्स ड्रॉ करते थे ना, लाइंस, फिर वो बॉक्स बनाते थे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस या डायगोनल लाइंस मींस हैवी रेनफॉल, फिर ऐसे डॉट 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 बनाए तो आप बोलते थे दिस इज स्कैंटी रेनफॉल। मैप बनाते थे कि नहीं हम ज्योग्राफी, और हम की देते थे। सो दिस इज एग्जैक्टली दैट की, कि अगर मैंने ऊपर कोई शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, वो शॉर्ट फॉर्म, जैसे मैंने अगर कम्युनिकेशन, वर्बल को मैंने सिर्फ VER लिखा, क्या लिखा? VER। पूरा वर्बल का स्पेलिंग क्या है? VERBAL। मैंने क्या लिखा? VER। तो मैं नीचे लिखूंगी कि VER इज इक्वल टू वर्बल, तो ये की है। तो जो जो एब्रीविएशन आपने यूज किए उसका आपको की देना है। एब्रीविएशन मैम हमारे मन से बना सकते हैं क्या? नहीं। एब्रीविएशन के लिए 5 रूल्स दिए गए, आपको वही फॉलो करने हैं। एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म कैसे करना है किसी भी शब्द का, ये भी ICAI ने आपको बताया है, आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। क्या हम सिंबल्स यूज कर सकते? बिल्कुल। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क, तो सिंबल के लिए भी आप दे सकते हो कि ग्रेटर देन लिखने का वो साइन, कि ऐसा लिखने का ग्रेटर देन व्हाट डज दिस मीन? ग्रेटर देन। और यू कैन से एंड का सिंबल हो सकता है, या और कोई भी सिंबल हो सकता है जो कॉमनली यूज किया जाता है, उसका आपको मीनिंग देना पड़ेगा। ये सब आप जब कंप्लीट करोगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपका जो पैसेज होता है, मैम क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि नोट मेकिंग करना है, तो बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा नोट मेकिंग करना होता है? लीनियर। नोट मेकिंग इज
बहुत बड़े पैसेज को शॉर्ट में नोट्स बनाना। तो आइदर इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर मैंने अभी तक समझाया नहीं, मैं समझाऊंगी आपको, हम थ्योरेटिकली तो उसको कंप्लीट करेंगे, कुछ भी हम स्किप नहीं करेंगे। लीनियर नोट मेकिंग आपको एग्जाम में आता है और लीनियर का मैंने आपको फॉर्मेट दे दिया, फॉर्मेट बता दिया। अब हम उसके एब्रीवेशन, देखो एक और चीज, लकीली मैं आपको पहले सिखाऊंगी थ्योरेटिकली, तुरंत ये सिखाने के बाद हम एक पैसेज लेके नोट मेकिंग करेंगे, तो हम प्रैक्टिकली भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको कोई डाउट्स बचेंगे ही नहीं। तो मैं आपको अगर कुछ भी पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको दो बार पढ़ाऊंगी, पहले पढ़ाऊंगी थ्योरेटिकली और फिर पढ़ाऊंगी प्रैक्टिकली। सो फर्स्ट आई विल टीच यू व्हाट इज द फॉर्मेट एंड देन आई विल एक्चुअली टेक अ पैसेज एंड वी विल एक्चुअली डू अ नोट मेकिंग। तो आपको कोई भी चीज ऐसा लगा कि नहीं मैम एकदम वो 100% फील नहीं आया, क्योंकि 100% सिखा के हुआ ही नहीं है। पहले थेरोटिकली बताऊंगी तो तब जाके मैं आपको प्रैक्टिकली भी करवा सकती हूँ ना, थोड़ा तो हिंट देना पड़ेगा ना। डायरेक्टली मैं पैसे स्टार्ट कर सकती हूँ क्या? नहीं ना यार, मुझे पहले हिंट देना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा ना ऐसा करने का है, और फिर करेंगे साथ में नोट मेकिंग करेंगे, एक हाथ होमवर्क के लिए दूंगी तो प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब एब्रीवेशंस के रूल्स समझ लेते हैं। तो पहले तुमको ये समझा क्या, अब यार एक कोई दोस्त आपका एब्सेंट है, तुम उसको बोलना आज बीसीआर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ, क्या हुआ? नोट मेकिंग। मतलब क्या आएगा? पैसेज आएगा, पैसेज में से अपने को क्या बनाने के? नोट्स। नोट्स बनाने के दो तरीके, लीनियर एंड नॉन लीनियर। एग्जाम में अपने को क्या पूछते हैं? लीनियर। लीनियर मतलब वन बिलो दी अदर। लीनियर के लिए फॉर्मेट है हेडिंग देने का, पहले क्या देने का? हेडिंग। हेडिंग के नीचे मिनिमम 3 सब हेडिंग्स तो होनी चाहिए। पैसेज बड़ा है, और ना डोंट आस्क मी क्वेश्चन, मुझे ना ऐसा फील आना चाहिए कि मैं सीए के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो अभी तुम पूछे मैम 3 सब हेडिंग्स होना ही जरूरी है क्या? बोला ना अभी, एटलीस्ट 3 तो चाहिए। पैसेज बड़ा है तो नहीं मैम मुझे 4 देना है, मुझे 5, अरे दो ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ? समझा क्या? ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तुम्हारे सवाल ऐसे होने चाहिए कि मुझे क्या लगना, फील आना चाहिए कि मैं सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। समझ में आता है क्या? इन इंग्लिश है क्या, इधर एक ने 3 लिखे, एक ने 4 सब हेडिंग लिखे, तो कोई मार्क्स में फर्क नहीं, तुमको वो वैसा लगा। ठीक है, अब हेडिंग में एब्रीवेशन यूज करना है या नहीं करना है? नहीं करना है। तो उसको बोलना देख, लीनियर में अपने को ऐसे हेडिंग्स देने, उसके सब हेडिंग्स देने हैं, और सब हेडिंग्स में एब्रीवेशन यूज करना है, हेडिंग में एब्रीवेशन यूज नहीं करना है। और पॉइंटर्स, सब हेडिंग के नीचे जो पॉइंट्स है उसमें भी एब्रीवेशन यूज करना है। और एब्रीवेशन तुम और मैं नहीं डिसाइड करेंगे, आईसीएआई ने रूल्स बनाए और हम वो ही रूल फॉलो करेंगे। वो जनरली फॉलोड रूल्स होते हैं एब्रीविएशन के, तो हम भी वही फॉलो करेंगे। और नोट मेकिंग खत्म होने के बाद अपने को की देना कंपलसरी है। सिंबल जनरली हम यूज नहीं करते, आईसीआई भी जनरली यूज नहीं करता, हम भी नहीं यूज कर सकते। नहीं मैम मुझे तो करना है, बेस्ट है, कर सकते हो, कोई उसमें रोक टोक नहीं है, क्योंकि यू आर अलाउड टू यूज सिंबल्स। समझ में आ रहा है क्या? ओके, अब एब्रीविएशन के रूल्स है। पहला एब्रीविएशन का रूल देखो क्या है, ए यूज ऑफ बिगनिंग्स। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म्स। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म्स। सो एब्रीविएशन का ये क्या होता है? मीनिंग शॉर्ट फॉर्म, सॉरी। यूज ऑफ बिगनिंग्स, यूज ऑफ बिगनिंग्स ये पहला रूल है। ऑब्जर्व करो, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को मैंने कैसा लिखा है? इन्फो कैसे आया? बिगनिंग वाले अल्फाबेट्स यूज करके, बिगनिंग वाले लेटर्स यूज करके। इन्फो, इंफॉर्मेशन का क्या कर दिया? इन्फो। ओके, दूसरा देखो, मैक्सिमम का क्या किया? मैक्स। इंटरेस्ट का क्या कर दिया? इंट, INT। 5 रूल्स है। आपने एग्जाम में एग्जामिनर को थोड़ा इंप्रेस करना चाहिए कि बॉस मैंने पढ़ाई की है बीसीआर की, तो 5 में से एटलीस्ट 3 तो भी यूज करने चाहिए, एटलीस्ट 3 से 4 तो भी यूज करने चाहिए। एनी नोट मेकिंग शुड हैव एटलीस्ट 7 to 8 एब्रीविएशंस मिनिमम, कंपल्सरी। कितने एब्रीविएशंस होने चाहिए? 7 to 8। 7 to 8 एब्रीविएशंस आपके पैसेज में, कोई भी नॉर्मल एवरेज पैसेज आता है तो उसमें 7 से 8 एब्रीविएशंस होना जरूरी है। आप कोई भी आईसीआई का RTP, MTP, पास पेपर देखोगे तो हमेशा एब्रीविएशंस यूज होते ही है। एब्रीविएशन यूज नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है? ओके, अब यूज ऑफ बिगनिंग समझा क्या आपको? म्हणजे काय केलं यूज ऑफ बिगनिंग्स मध्ये? मैम सिर्फ स्टार्टिंग के वर्ड्स लिए, बेस्ट है। अब देखो बी में क्या बोला है? यूज ऑफ बिगनिंग्स विद द फाइनल लेटर। ओहो, क्या बोल रही हूं मैं? यूज ऑफ बिगनिंग्स विद द फाइनल लेटर, मतलब गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का स्पेलिंग क्या है? GOVERNMENT। नहीं मैम मुझे ना ये गवर्नमेंट को GOVH करना है, ऊपर वाले के हिसाब से करो।
किसी बच्चे को लगता है नहीं नहीं मैम मैं गवर्नमेंट के लिए दूसरा रूल यूज करूंगा, GOV एंड लास्ट लेटर T, बोथ आर करेक्ट। हर बच्चा अपने अपने हिसाब से रूल यूज करेगा, लेकिन देखना कि आप एक ही रूल नहीं यूज करते, यूज वैरायटी ऑफ रूल्स। एब्रीविएशन यूज बनाते वक्त यूज वैरायटी ऑफ रूल्स सो दैट एग्जामिनर नोस कि आपको पता है यार 3 तो भी रूल्स यूज करो, 5 है कितने तो भी रूल्स यूज करो, 3 वैरायटी ऑफ रूल्स यूज करो टू मेक एब्रीविएशंस, और कम से कम 8 एब्रीविएशंस तो आपने बनाना चाहिए। हेडिंग जो होता है टाइटल, उसमें कभी भी एब्रीविएशन नहीं होता है, उसके नीचे एब्रीविएशन होना चाहिए। इज इट कंपल्सरी? यस। क्वेश्चन में नहीं बोला लीनियर या नॉन लीनियर, तभी कौन सा बनाना है? लीनियर। आई थिंक माई इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर, क्योंकि मुझे पता है आपके मन में क्या डाउट्स आते हैं। अगर हम इतने साल पढ़ाते तो हमको पता होता है कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने पे बच्चों को कौन से डाउट आते हैं, इसलिए 2 मिनट आप डाउट पूछना मत, टाइप मत करना। मैं सुन सकती हूँ आपके डाउट्स, भले ही आप नहीं लिखोगे और टाइप नहीं करोगे, आप पूछोगे नहीं, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने दो, प्रैक्टिकली पढ़ाने दो, फिर अगर डाउट बचा तो बिंदास पूछो, ठीक है क्या? हाँ, अब ये देखो ध्यान से देखेंगे, डिपार्टमेंट का फुल स्पेलिंग क्या है? DEPARTMENT। तो अगर आपको पहला वाला रूल यूज करना है तो उसका एब्रीविएशन बनेगा DEP। अगर आपको DEPT लगाना है, अच्छा तो मैंने सेकंड, तो मैम मुझे एग्जाम में लिखना पड़ेगा मैंने कौन सा रूल यूज किया? नहीं, ये भी मन में आपके डाउट आएगा, तो मैम क्या मैंने एग्जामिनर को बताना चाहिए मैंने फर्स्ट लेटर वाला रूल यूज किया या वो T वाला लास्ट? नहीं, आपको कोई बताना नहीं है उसको, सिर्फ वैरायटी ऑफ रूल्स यूज करो, दैट्स इट। सिर्फ वैरायटी ऑफ रूल्स यूज करो, यूज एनीथिंग। कोई बच्चा गवर्नमेंट को GOV करेगा, कोई बच्चा गवर्नमेंट को GOVT करेगा। गवर्नमेंट पैसेज में 2 बार आया, दोनों बार एब्रीविएशन अलग नहीं करने का। गवर्नमेंट का एब्रीविएशन आपके पैसेज के लिए एक ही रहेगा। सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस ऑफ डाउट्स आपके जो आएंगे मैं आपको बता रही हूँ। गवर्नमेंट अगर ये शब्द 2 बार आया तो क्या पैसेज में ऐसा हो सकता है ना कि एक बार ऊपर भी गवर्नमेंट लिख के आया, नीचे के पैराग्राफ में भी गवर्नमेंट लिख के आया, ओ माय गॉड, देन कैन आई डू इट अगेन? उसके हर बार अलग अलग नको रे, एक ही शब्द को एक ही एब्रीविएशन वाला रूल यूज करने का झेपता है क्या? अब तो थ्योरेटिकली पढ़ा है, अभी प्रैक्टिकली पढ़ाना बाकी है। हाँ, अब आता है यूज ऑफ बिगिनिंग्स। Use of beginnings means and the final letter. Government is the best example. GOV और end वाला T. Production देखो, production मैंने कैसे लिखा? इनिशियल वर्ड्स यूज किए PROD और एंड वाला N यूज किया। तो प्लीज इसके लिए थोड़ी देर के लिए मुझे कोई भी सवाल मत पूछना। आज या जब कल पूरा प्रैक्टिकली पढ़ा के एक नोट मेकिंग हो जाएगा तब मैं आपको पूछूंगी, अब आपके डाउट्स पूछ लो, ऐसा, ठीक है? हाँ, अब ये C वाला मुझे पसंद आता है, ये यूज करना भी बहुत इजी होता है। ओमिट वॉवेल्स, क्या रूल है ये? ओमिट वॉवेल्स। वॉवेल्स का मतलब होते हैं कौन से अल्फाबेट्स? AEIOU। जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं 26, उसमें से ये आपके वॉवेल्स होते हैं। इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है। इनके पहले हम लोग AN लगाते अ की जगह पे। ओके, सो एन अम्ब्रेला, सो इफ आई यूज इट यू, तो अलग अलग इसके रूल्स। ये वॉवेल्स है, तो मैं इन शब्दों को ढूंढूंगी, उनको काट डालूंगी। ये देखना, प्रॉब्लम, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ प्रॉब्लम? PROBLEM। अब उसमें वॉवेल्स कौन से है? AEIOU में से कौन से वॉवेल्स है वहां पे? O and E। तो O को मैंने कट कर दिया और E को कट कर दिया। जो बचा हुआ, मैम वो बचे हुए शब्द का ना कोई अर्थ नहीं है, कोई क्या है, ऐसा कोई लिखता है प्रॉब्लम को? PRBLM, हाँ ऐसे लिखते हैं, ओमिट वॉवेल्स करके ऐसे ही आता है। मैम वो एटलीस्ट वो ऊपर वाला ठीक था, इंटरेस्ट हम कॉमनली यूज करते। अरे तुम कॉमनली यूज करते क्या यूज नहीं करते, वो सवाल ही नहीं है, ये ऐसा रूल है। और वैसे भी मैम वो हमने अगर प्रॉब्लम को ऐसा लिखा तो एग्जामिनर को समझेगा नहीं, इसके लिए तो अपन की देते ना, की दे रहे ना नीचे। हम लिखेंगे क्या है PRBLM इज इक्वल टू प्रॉब्लम, ऐसा की देने वाले ना अपन, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। चलो, पहला रूल क्या है? बिगनिंग। दूसरा क्या है? बिगनिंग प्लस लास्ट। चला चला लवकर, पहला क्या है? यूज बिगनिंग। दूसरा क्या है? बिगनिंग प्लस लास्ट। समझा क्या? तीसरा, ओमिट द वॉवेल्स। बहुत इजी रहता है ये, वॉवेल बिगनिंग में ही आ गया तो ये मत यूज करना। एग्स तो ई कट करोगे, सिर्फ जी क्या लिखोगे? डोंट डू दैट, डू यू अंडरस्टैंड दैट?
यस, सो प्लीज अंडरस्टैंड कहाँ कौन सा यूज करना है। और एक्स को तो एब्रीविएशन करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा शब्द है, हर शब्द का एब्रीविएशन नहीं करने का। इज द, नो 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 नो, डोंट डू एब्रीविएशन फॉर ऑल ऑफ दीज बिग वर्ड्स ओनली, देन यू हैव टू डू एब्रीविएशन। ये बिजनेस तो देखो कैसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये, झेपता नहीं है वो, क्या है, मत झेपने दो, अपने को मार्क्स मिल जाएंगे लेकिन। ओके, डी रूल देखना, डी रूल क्या है, यूज द फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर, फर्स्ट एंड लास्ट। ओ गॉड, माउंट, MNT क्या है, MNT गेस करके भी समझेगा नहीं क्या लिखा है, इसलिए की देना जरूरी है। गर्ल का उन्होंने देखो क्या किया है, GNL, हमको GF पता है, GL नहीं पता है, GL इज गर्ल, समझ में आ रहा है क्या इधर, मिस्टर, ठीक है। लास्ट ई वाला रूल से शॉर्टन द सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है लास्ट में आए गया, जनरली हम ING, इम्प्लीमेंटेशन, प्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, इनके लिए यूज करते हैं। सफिक्स देखो, किसी भी शब्द में प्रीफिक्स होता है और सफिक्स होता है, प्री मतलब पहले आने वाला और सफिक्स मतलब बाद में आने वाला। किसी भी शब्द के आगे आप कुछ जोड़ सकते हो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, उसके बाद में कुछ जोड़ सकते हो उसको बोलते हैं सफिक्स। तो जो बाद में जो है ING, इम्प्लीमेंटेशन, यू कैन शॉर्टन दैट सफिक्स। इसमें ना मुझे तो ICI के रूल्स में ना कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है, हर बार कैसा भी अलग अलग वर्ड्स ही यूज करते हैं वो। तो जनरली इधर जैसे उन्होंने प्रोडक्शन को सिर्फ I और O कट कर दिया, N को रख दिया है, तो वो हर बार अलग अलग यूज कर रहे हैं, तो ये अवॉइड करेंगे हम लोग। ई वाला रूल कम से कम यूज करेंगे, ये वैसे भी सब जगह नहीं हो सकता। और 5 में से अगर आप 4 वैरायटी यूज कर रहे हो तो इट इज मोर देन इनफ। इस रूल में कंसिस्टेंसी नहीं है, थोड़ा सा ड्रॉबैक है, हर बार वो अलग अलग देखा है मैंने, तो इसको हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे ई वाले रूल को। बट ई वाला रूल अगर आप देखोगे, इम्प्लीमेंटेशन देखो ना, कोई भी मेरे को तो कनेक्शन ही नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ ही उधर कट कर दिया, लास्ट में सिर्फ एन रखा है। इम्प्लीमेंट M तक किया, फिर ENTATIO सभी कट कर दिया, फिर एन रखा है। तो मैम ये तो मतलब ऑलमोस्ट बिगनिंग और लास्ट वाला भी हो गया। तो मैंने बोला ना, ये जो वाला ई वाला रूल है वो ICI ने अच्छे से उसको यूज नहीं किया है, हर बार उसमें थोड़ी सी मुझे डिविएशन लग रहा है कि रूल फॉलो नहीं हो रहा है या वो समझ में नहीं आ रहा है। तो अपने को कंफ्यूजन करने का नहीं है, अपने को लॉ का पेपर भी लिखने का, अपने को BCR या नोट मेकिंग में PhD नहीं लेके आने का, अपने को 3 मार्क्स लेके आने का। सो बी वेरी टू द पॉइंट। कोई भी आप, अगर मैं आपको होमवर्क दूंगी नोट मेकिंग का, कोई भी होमवर्क को 10 मिनट से ज्यादा आपने टाइम नहीं देना है कि भावनाओं में बह गए, सोच रहे कैसा करेंगे, ऐसा लिखेंगे, नहीं नहीं या ऐसा अच्छा लगेगा। प्लीज डोंट डू दैट, वी डोंट हैव द टाइम। कम्युनिकेशन का चार्ट भी 40 मिनट्स के ऊपर नहीं बनना है, 40 मिनट्स 30 मिनट्स के ऊपर नहीं करना है आपको टाइम। लर्न टू डू टाइम बाउंड वर्क, ओनली देन यू आर एबल टू डू इट इन द एग्जाम ऑल्सो। तो अगर मैं जब भी आपको होमवर्क दूंगी, मैं बोलने वाली हूँ टाइमर लगाना है और ये 10 या 12 मिनट में हो जाना चाहिए, तो आपको आदत पड़ती है उसकी, ठीक है। ये रूल्स के मैं फोटो अभी ग्रुप पे डालती हूँ, तो ये आप होमवर्क के लिए 1 डे बिफोर द एग्जाम में लिख के आओगे। होमवर्क दे रही हूँ मतलब क्लास खत्म हो गया ऐसा नहीं है, और 5 मिनट है, मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। तो पहले ये आप क्या लिखोगे वहां पे लिख के लो, हाँ, रूल्स फॉर एब्रीविएशन ऐसा लिखो, मतलब पता रहता है वो पेंडिंग है। फिर मैं फोटो भेजती हूँ आपको ग्रुप पे, फेस टू फेस। यू ऑल्सो ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप ना, इट्स 1 ग्रुप फॉर ऑल ऑफ यू ऑल ना। ओपन द टेक्स्ट, कौन से पेज पे देखो, उधर लीनियर नॉन लीनियर का भी एक चार्ट बना लेंगे अपन। मच नहीं करने का मेरे क्लास में। आई हैव सेंट यू। क्या रे, पेज नंबर क्या है? सो ओपन द पेज नंबर 70 व्हाट? ओके, नाउ 1 minute.
नोट मेकिंग ये प्रैक्टिस आपने रियल लाइफ में भी यूज करनी चाहिए और आपके अच्छा इस पे थ्योरी क्वेश्चन आने वाला है क्या? व्हाट इज नोट मेकिंग, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ राइटिंग नोट मेकिंग. ओ माय गॉड नो, वी आर गोइंग टू गिव यू अ पैसेज एंड एक्चुअली आस्क यू टू डू इट प्रैक्टिकली फॉर अस. क्या इस पे थ्योरी क्वेश्चन आने वाला है क्या? अरे बोलो ना, थ्योरी क्वेश्चन आने वाला है क्या? नहीं, इस पे क्या आने वाला है? पैसेज आएगा और नोट मेकिंग करने का स्टेप्स आ जाएंगे. तो ये जो यहाँ पे दिया है ये सब हमको लर्न करना है क्या? नहीं. इसके लिए आपको क्या बना के दे रही हूँ? 1 डे बिफोर द एग्जाम. तो वो फॉर्मेट पढ़ने का, वो रूल्स पढ़ने का, एक एग्जाम्पल देख लेने का नोट मेकिंग का, यू आर सॉर्टेड फॉर द एग्जाम. सो 1 डे बिफोर 20-25 पेजेस में मैं आपको पूरा BCR का समरी नोट क्लास में बना के दे रही हूँ. समझा क्या? सो वी आर ऑल्सो प्रैक्टिकली यूजिंग नोट मेकिंग. वी आर यूजिंग इट ना. हाँ, वी आर मेकिंग ना 1 डे बिफोर द एग्जाम के नोट्स ही बना रहे हैं ना अपन. ओके, अब देखो नोट मेकिंग क्या है. नोट मेकिंग सर्कल करो. इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर सोर्स. है ना, पैसेज है, एक सोर्स है, टेक्स्ट है, कम्युनिकेशन का चैप्टर है, उसके आप नोट मेकिंग कर रहे हो, है ना. होमवर्क करके आने का, वो नोट मेकिंग के रूल्स लिख के आने के. ठीक है, ये क्यों जरूरी है? स्केर्सिटी ऑफ टाइम एंड वास्ट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. यू कैन रिलेट विथ इट. CA कोर्स, स्केर्सिटी ऑफ टाइम, वास्ट इंफॉर्मेशन, वास्ट सिलेबस. क्या करने का? नोट मेकिंग यूज करो. रेडीमेड नोट्स मिलते, हर कोई खरीद के CA बन जाता. अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं. ठीक है, आगे एडवांटेजेस ऑफ नोट मेकिंग. मेक नोट्स इन अ पैटर्न दैट यू आर कंफर्टेबल. ये आपको फ्यूचर यूज के लिए हेल्प करेगा. अलग अलग स्टाइल्स है नोट मेकिंग की. तो एडवांटेजेस क्या है? इट इज आपको फ्यूचर यूज के लिए हेल्प करेगा. इट इज सेव्स टाइम. क्या सेव करता है वो? टाइम. इट इज गोइंग टू सेव द टाइम ऑल्सो. समझ में आ गया क्या आपको? हाँ कि नहीं? हाँ. स्ट्रैटेजीज वो मैंने आपको दे दिया. ये जो स्ट्रैटेजीज है, ओहो स्ट्रैटेजी स्टेप्स है, ये मैंने आपको ऑलरेडी 1 2 3 4 पॉइंट्स में लिख के दे दिया है. तो ये जो स्ट्रैटेजी है, यू कैन राइट हियर रेफर 1 डे बिफोर. या 1 डे बिफोर द एग्जाम की नोटबुक में आपका हो जाएगा. अच्छा, देर इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट. ये आपको लर्न नहीं करना है. यहाँ कुछ लर्न करना है क्या? नहीं. नोट मेकिंग और नोट टेकिंग अभी सुन के लेना. एक और आपको चीज बोलती हूँ, कभी कभी लेक्चर सुनते सुनते थ्योरी लेक्चर में मैम हमको नींद आ जाती है. व्हाट शुड यू डू? यू शुड स्टार्ट एक रफ पेपर लेने का और जो भी मैम बोल रही है वो लिखते जाने का. जैसे अच्छा क्या है नोट, हम क्या सीख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोलती गई नोट मेकिंग. सो फटाफट किसने लिखने का? नोट मेकिंग. 2 टाइप्स, लीनियर, नॉन लीनियर. एग्जाम लीनियर. क्या कर रहे हो आप? नोट टेकिंग कर रहे हो. तो जब कोई बात कर रहा है आपको ऐसा हो जाता है, हम भी जैसे कभी मैं सेमिनार अटेंड कर रही हूँ या कॉन्फ्रेंस में गई हूँ, स्पीकर इज टॉकिंग, यू टेंड टू मिस आउट, ध्यान इधर उधर जाता है. तो फटाफट नोट टेकिंग करने का. नोट मेकिंग इज थ्योरी आप जो पढ़ रहे हो उसके आप नोट्स बना रहे हो. नोट टेकिंग व्हाइल समबडी इज टॉकिंग, आप की पॉइंटर्स लिख रहे हो सो दैट आप मिस ना करो और प्लस आपको नींद भी ना आए और आपका फोकस भी रहे. सो इन फैक्ट इफ यू हैव अ क्लास विच इज लेंदी, 2 आवर्स की क्लास जब होती है, 3 आवर्स की क्लास होती है, आपने क्या हैबिट डालनी चाहिए? नोट टेकिंग की. नोट टेकिंग की. या जिसको इश्यूज होते हैं कि फोकस और अटेंशन, हर एक का कॉन्सेंट्रेशन स्पैन अलग होता है. कोई बच्चे 1-2 घंटे बैठ सकते हैं, किसी को 40 मिनट्स हो गए तो लगता है बस बहुत पढ़ लिया अपन ने. तो हर एक का कॉन्सेंट्रेशन स्पैन अलग अलग होता है. जिसका कम है आपने नोट टेकिंग भी करने की कोशिश आप कर सकते हो. एग्जाम में नोट टेकिंग का कोई संबंध है क्या? नहीं. बट ऐसे ही वो नोट मेकिंग और टेकिंग सेम लगते हैं तो उन्होंने बोल दिया वो सेम नहीं है. कि नोट टेकिंग मतलब कोई बात कर रहा है और आप उसमें से नोट्स लिख रहे हो, और नोट मेकिंग मतलब जो हम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का आप चार्ट बना रहे हो. व्हाट इज दैट? दैट इज नोट मेकिंग. ओके, so note taking is a passive process. It involves taking down what is heard or read. So जो भी आपने
सुनते जा रहे हो, आप लिखते जा रहे हो विदाउट प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन. आप कुछ प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हो. मैम ने जो जो बोला, नोट टेकिंग, 5 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 7B, फिर आपने लिख लिया लीनियर, फिर आपने लिखा नॉन लीनियर, फिर आपने लिखा एग्जाम में लीनियर, फॉर्मेट, यूज एब्रीविएशन. जैसे जैसे मैं बोलती गई आप सोच बिना सोचे. बट अगर आप नोट्स बना रहे हो, कम्युनिकेशन का चार्ट, आपको प्रोसेस करना पड़ेगा. मैं चार्ट कैसे बनाऊं, कितने टाइप से, आप सोच के फिर बनाते हो नोट मेकिंग. समझ में आ गया क्या? अब यहां पे लिखेंगे नोट मेकिंग के 2 स्टाइल्स. सर्कल करो. कितनी स्टाइल्स है? 2 स्टाइल्स. 2 minutes एंड आई विल स्टॉप अनदर 2 minutes. ओके. नोट मेकिंग के कितने स्टाइल्स है? 2. सो लीनियर नोट मेकिंग, ये सबसे कॉमन स्टाइल है. 1 लाइन आफ्टर द अदर वी यूज इट. तो ऐसा स्ट्रेट लाइन में अपन लिखते हैं. दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं? लीनियर. ऐसे नोट बनाते हैं हम स्ट्रेट. 1 2 3 एक के नीचे एक बनाते हैं. दैट इज वाई स्टाइल को क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर. ये सब इन्होंने दिया है, देखो एब्रीविएशन यूज करना वगैरह वगैरह. अब नॉन लीनियर देखते हैं. नॉन लीनियर में आप अलग अलग प्रकार से बना सकते हो. मैप्स होते हैं, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, टी डायग्राम्स, ट्री डायग्राम्स. कितने टाइप से है? देयर आर 4 टाइप्स. विद इन नॉन लीनियर ऑल्सो कितने टाइप्स है? 4. विद इन नॉन लीनियर भी कितने टाइप्स है? 4. ये तुमको समझ में आ रहा है ना? हाँ. तो 1 मिनट, आप स्टिकी नोट ले लो. लीनियर एंड नॉन लीनियर. और नॉन लीनियर के कितने टाइप से बता दो मुझे. बताओगे? पहला क्या है? वहां से देखो ना, नोट्स में से बताओ. माइंड मैपिंग. दूसरा टेबल्स, फ्लो चार्ट एंड ट्री डायग्राम. स्टाइल्स ऑफ नोट मेकिंग. स्टिकी नोट पे लिख दो या कहीं जगह है क्या देखो. एनीवेयर वेर एवर देर इज स्पेस जस्ट चेक, अदरवाइज यूज दिस स्टिकी नोट. फिर ये माइंड मैपिंग, टेबल, ये क्या है ये कल समझाऊंगी. और कल हम लोग एक पैसेज लेंगे और एक्चुअली नोट मेकिंग करेंगे. ठीक है? टाइम खत्म हो जाता ना, तो फिर आई हैव टू स्टॉप. सो आई विल कंटिन्यू दैट टुमारो. ठीक है क्या? कल आपने चंद्रयान 3 देखा क्या? It was such a nice and did you realize that Chandrayaan 2 had failed at a point and now this has been a success. And Chandrayaan 3 के लिए कितने साल काम किया इसरो ने? 4 years. So 4 years, 3 years and 10 months. So it's almost like 4 years. So almost like 4 years काम करने के बाद उनको रिजल्ट मिला. समझ में आ गया ना? Yes. चलो, तो ये हो गया आपका. नोटिंग हो गया? यस. सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. आई विल सी यू टुमारो. हैव अ वंडरफुल डे अहेड. ओके, बाय. थैंक यू. लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, बाय बाय. स्ट्रीमिंग राहू देतो ऑन हेमंत, काही त्यांना असेल तर.